Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hope you all are fine and healthy. Yes, sir. Good evening, sir. I am Nimish Agrawal, your host for this webinar organized by RCT Classes. You all have known the RCT Classes as a place where you get knowledge, education, encouragement, and guidance to move ahead in your life. And on this path of knowledge sharing, we have decided to take more steps and are starting this webinar session to reach out and help more students in setting and giving more clarity about their future goals and career. RCT Classes have been working towards to provide best education and tuition facilities in their students. We have been also supporting our students with extracurricular activities such as sports, counseling about your career plan, for field to choose as per their talent and interest, and are also awarding students for amazing achievement. The director and founder of RCT Classes, Mr. Rahul Chand Thakur, is on mission from more than 5 years to provide the best of his knowledge and guidance to his students in achieving their educational and life goals. He has been working hard with each and every student so that each one can get the desired result. And this process designed by Rahul sir is not only hardworking but also consists of fun and excitement. He also has been working with NGOs to provide COVID relief in this pandemic. Now inviting Mr. Rahul to say few words to our lovely audience. Welcome, Mr. Rahul. Hello students, thank you so much Mr. Nimish. Hope you are well. And am I audible to all of you? Yes, sir. Your voice. Yes, sir. Okay, thank you so much. So today we all are here just to get some information regarding some computer science and related technologies, and for those kind of stuff to tell about, we have Mr. Anurag Sharma. He will proceed you after 5 to 10 minutes later on. So in this webinar, basically many of our students have so much to get about the knowledge, various stuff like how to build your career after class 12, what are the main domains you can work on it. Basically up to class 12 we can just relate ourselves with bookish knowledge only, but after 12th the real journey begins, so that which field will be beneficial for you, which stuff you can do for your career that will suit on you, all these things will be discussed in this webinar. So thank you so much to handling this webinar and organized by Mr. Nimish Agrawal. So yes, you can pursue. Thank you, Mr. Rahul, for your kind words. With these, I would like to thank each one of you all for supporting RCT Classes by joining our webinar. Now, handling our mic to our bio faculty, Ms. Anjali Kaushik. Welcome, Ms. Anjali. Yeah, hello. Thanks for inviting, and it's been a great journey so far with RCT Classes. And with today's opportunity, we are looking forward for a great session at this webinar. Thank you. Thank you, Ms. Anjali, for your kind words. Now introducing our economic faculty for Mr. Manish. Welcome, Mr. Manish. Kindly check. I don't think so. He is here. So you can continue. Oh. Now it's time to start webinar
by Mr. Anurag Sharma, System Engineer at TCS Tata Consulting Service. He will be our speaker for the show. Hand it to you, Mr. Anurag. Please start the show. Thank you, Nimish. Thank you, Nimish, sir. Hello, Mr. Rahul. How are you? How are you all students? I hope I'm audible. Yeah, you are audible. Thank you so much for coming. Thank you for joining us. Thank you for having me, actually. And thank you for the introduction. So I just start again in case new students have joined. So my name is Anurag Sharma. I am currently working as system engineer at Tata Consultancy Services Digital. I am a Microsoft certified Azure data scientist. Apart from that, I'm working on Salesforce cloud platform, and I work on Viva CRM applications as a software developer. So before starting the session, I would just like to thank RCT classes for actually scheduling this session, because to be honest, students do not get this kind of guidance, and this is something I wish I had when I was in my class 12 or when I passed class 12. This is something which I really appreciate. Thank you for that. Now, moving on, I know that the board class results have been announced, so I would like to congratulate you all. I hope you worked really hard for them and you have got really good scores. So I have written down the agenda, what we will be discussing. So basically, we'll be discussing about the computer science domains that, let's say if you go for BTech engineering and computer science department, what all you can expect, and if this is the right choice for you or not, that would be up to you. But at least I can give you some guidance, like what you will be expecting if you join, if you go for engineering and in computer science especially. Then, okay, so we'll start with, before getting into the domains, as Mr. Rahul said, that now school time is over, and so far the complete education was completely very restricted and the curriculum was very limited. But going forward, your curriculum, what all you study, from where you study, that is going to be, that won't be limited to your university syllabus, rather it will be limited to what you are studying. I would really encourage, like in whichever field you go, don't be restricted to your university syllabus. Definitely go beyond what your university is asking you to study and get to know what the industry demands in your field. Let's say if I'm talking about computer science engineering, get to know which technologies are currently trending and which technology suits you, and then decide and go forward with it. So this is my 2 cents of knowledge for you. Now getting into the cryptography. Okay, so it is all. Before we start into the domains, BTech करनी क्यों है? Why do you want to get into engineering? That is a really good question to start with. So, as you can see, we are going through a tough time. Although things are much better now, we were experiencing a pandemic globally. बहुत लोगों की jobs गई है. बहुत सारे लोग unfortunately भी jobs चली गई and things were not good. तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मुझे ये चीज़ लगी कि आई बिलीव कंप्यूटर साइंस डोमेन वाज द डोमेन व्हिच वाज comparatively least affected by the pandemic. And actually if you consider the current scenario, the attrition rate, मतलब कि कितने लोग कंपनीज छोड़ के स्विच कर रहे हैं, the amount of jobs which are present currently is really good. मतलब कि अभी आप देखो, everything is moving on cloud, everything is getting digital. So computer science, it is one of the good choices that you can go for. But what you will choose, that will depend on you. Now finally we'll be getting into the domains. So I'll just go through the domains. I have penned down a few of them.
एंड आप डिसाइड कर सकते हो अगर इसमें से आपको कुछ भी ऐसी चीज लगती है जो आपको इंटरेस्ट करती है तो आप उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो उसके बारे में, आप ऑनलाइन जा सकते हो। लेट्स से बीटेक नहीं, एक चीज जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं करते वो ये है कि बीटेक कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि एक्सपेक्ट क्या करना है बीटेक के अंदर। तो आप ऑनलाइन जाइए, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करिए और टाइप करिए बीटेक का सिलेबस क्या है। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि हमें अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं लेने। हमें पता होना चाहिए कि अगर आप बीटेक जा रहे हो तो आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ, मेरी बातों पर मत जाओ। आप देखिए कि इज दिस समथिंग फॉर यू विच यू विल डूइंग और नॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे डोमेन्स की। अगर इसमें से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा, तो आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा जानना चाहता हूँ तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राहुल सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, निमी सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा क्रिप्टोग्राफी के बारे में, कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, बट एक बहुत अच्छा डोमेन है। तो मैं आपको हर एक डोमेन का एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्रिप्टोग्राफी जैसे कि आप अपना कभी पासवर्ड डालते हैं तो आपकी स्क्रीन पे स्टार 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 आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो तो हो गया फ्रंट एंड पे, मतलब कि आपको जो दिख रहा है वो पासवर्ड स्क्रीन पे सेव भी होते हैं। तो वहां पर भी वो डायरेक्टली सेव नहीं हो जाएंगे पासवर्ड्स, उन पासवर्ड्स को हम कुछ बदल देते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे ABCD आपका पासवर्ड था और आपने ABCD को एक एक आगे बढ़ा दिया, मतलब कि ABCD का BCDE कर दिया, तो आपका पासवर्ड एग्जैक्टली सेम नहीं सेव किया। इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली एक मैसेज को दूसरे मैसेज में कन्वर्ट कर देता है उसके अंदर। देन वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल बहुत ज्यादा नाम हो रखा है कि क्लाउड होता क्या है। क्लाउड बादल तो नहीं होते, नहीं बादल नहीं होते। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि बेसिकली अभी तक जो हमारा मॉडल होता था ना कंप्यूटर काम करने का, वो ये होता था कि हमारे पास पावरफुल मशीन्स होती थी, हम उन पर काम करते थे। बट हमने सून रियलाइज किया कि इसके अंदर ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। लेट्स से मुझे अभी एक एक्सपेंसिव और अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मुझे कंपोनेंट्स बाय करने पड़ेंगे, फिर मुझे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, फिर मुझे उसको सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, सब इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली होता है आपको यही सब ऑनलाइन मिल जाएगा। बेसिकली आपका एक सिस्टम होगा जो कहीं डेटा सेंटर के अंदर रहेगा और वो आपको इमीडिएटली आप उसको यूज कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पर भी बैठे किसी भी डिवाइस से, एज लॉन्ग एज आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप एक सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि उस सिस्टम एक प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई जिससे आप एप्लीकेशंस और बना सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो प्योर सिस्टम है, मतलब कि सिर्फ हार्डवेयर, आप उसमें अपना सॉफ्टवेयर डालिए, जो मर्जी करना करिए। अब उससे आपके सिस्टम जो चल रहा है, आपके सिस्टम में i3 है, वहां पे आपका i7 चल रहा है, जो भी चल रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल। देन आपने सुना होगा कि अभी इंडिया में रिसेंटली टेस्ला कंपनी आई है, तो टेस्ला भी बहुत जल्दी अपनी कार भी लॉन्च कर देगी इंडिया में। प्राइस होगा अच्छा खासा, क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं उनकी, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग और ऑटोनॉमस ड्राइविंग ये सब ऑफर करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये कैसे होता है? ये होता है बहुत सारे मतलब सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर जैसे कि लाइडार होता है कि लाइट के बेसिस पे, और रेडार और कंप्यूटर विजन जो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, इसके बेसिस पे ये सब चलते हैं। तो हम कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो कि डिटेक्ट करता है कि अच्छा ये दिस इज अ रेड लाइट, तो अगर रेड लाइट है तो गाड़ी को पहले स्लो कर देना है, स्लोली जेब्रा क्रॉसिंग तक अप्रोच करना है, फिर वहां पर उसके पीछे रुक जाना है। अगर हमारी कार चल रही है, कहीं पे हमें पेडिस्ट्रियन एक मतलब कोई आदमी सड़क क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो इमीडिएटली हमें कार को स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। इससे हम मॉडल्स कहते हैं एक्चुअली, जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में कहते हैं हम। इससे हमारे मॉडल्स मतलब एक से मान लो एल्गोरिथम ही हो गया, और एल्गोरिथम का अगर मतलब समझोगे तो एल्गोरिथम मतलब के स्टेप्स होते हैं कि आपको अगर इनपुट मिल रहा है, इनपुट हमारा जैसे हो गया कि कैमरे में हमारी एक वीडियो आ रही है, उसमें हमें एक आदमी दिख रहा है, तो अगर इसको डिटेक्ट करा और उसके बाद हमें करना क्या है कि गाड़ी स्लो करनी है या फिर उसको बचना है, तो साइड से निकल जाए या फिर कोई भी जो भी करना है वो हम उसको ट्रेन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। एक्सप्लिसिटली सारी कंडीशंस को हम नहीं डाल सकते कि अगर लेफ्ट से यहाँ से आ रहे हैं
अगर 2 मीटर पर रुका है तो हमें कितना मुड़ना है, तो हमें ट्रेन करेंगे, बाकी फिर वो कंप्यूटर फिर वो अपने आप चलने लगेगा, अपने आप मतलब वो डिसीजंस ले सकता है, हमें एक्सप्लिसिटली सारे सिनेरियोस कोड करने की नीड नहीं है। दिस कम्स अंडर कंप्यूटर विजन। और अगर आपको और अच्छा एग्जांपल दूं, आप में से बहुत सारे लोग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सब चलाते होंगे, तो उसके अंदर AR और VR आपने सुना होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जो आपके फेस पर फिल्टर्स आ जाते हैं या फिर जो होता है, दैट कम्स अंडर ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब कि एक रियल इमेज या फिर रियल वीडियो पे आपने कोई एक लेयर ऐड कर दी, और VR मतलब कि कंप्लीटली आपको एक नहीं वर्चुअल दुनिया दिख रही है। देन वी हैव फर्दर डोमेन्स जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग है, और मतलब लोग, बहुत सारे लोग उसकी तरफ लिटरली भाग रहे हैं। दैट इज अंडर डोमेन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा सब बच्चों ने। तो AI मतलब क्या होता है यार, कि हमारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, आप जब कभी कीपैड का बात कर रहे होंगे, किसी से चैट कर रहे होंगे मोबाइल पे, वो आप लिखोगे हाउ आर, और अपने आप को ऊपर रिकमेंड कर देगा यू। तो उसे कैसे पता चलता है कि यू लिखना है? या फिर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे थे कम्युनिकेशन की, आपने IT कर दिया इंस्टेड ऑफ TION, और वो बता देगा कि आपने यहाँ पे गड़बड़ करी है उसको। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकमेंडर सिस्टम्स, मतलब कि रिकमेंड कर सकता है चीजें आपको, और ये सब चीजें जो गाइड करता है, ये सारा डोमेन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही कई सारे और सब डोमेन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कंप्यूटर विजन का। और देयर इज डेटा साइंस ऑल्सो। डेटा साइंस मतलब कि अब हमारा डेटा बहुत सारे जनरेट होता है, बहुत सारा डेटा, मतलब कि आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अगर एक क्लिक भी करते हैं ऐड पे, तो उससे भी आप डेटा जनरेट कर रहे हैं, और ये डेटा कंपनीज के लिए ऑयल है। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बात बोली जाती है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब कि आप जो भी डेटा, आप जो बात करते हैं, अगर आप किसी चैट में लिखते हैं, लाइक आप स्नैपचैट की बात करूं, क्योंकि स्नैपचैट के लिए बेस्ट एग्जांपल है। स्नैपचैट के अंदर अगर आप लिखते हैं ना कुछ, तो आपको उससे ही रिलेटेड एड्स दिखेंगे। ऑल्दो आपके चैट्स डायरेक्टली नहीं पड़ेंगे, बट दे कैन एनालाइज थ्रू एल्गोरिथम्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाने लग जाते हैं। तो डेटा को देखना, उसको एनालाइज करना, बट और ये सब फिर सारा आएगा मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस के अंदर। अगर ये आपको फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है, तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए बहुत ही अच्छा डोमेन रहेगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, अगर आपको ये मीन मीडियन मोड पढ़ा हो आपने, और आपको जैसे और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो आपने IPL देखा होगा। IPL के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन मैच जीतेगा, इसके बेसिस पे कि कौन प्लेयर खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहे हैं, उनकी होम सिटी है कि नहीं, और इन बेसिस पे जो आपने देखा होगा, यूजुअली हमें पता ही होता है कि हाँ, अगर अपनी होम सिटी में खेल रहे तो दे विल प्ले बेटर, जो एक जनरल आइडिया रहता है, तो उसको हम और अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। देन वी हैव वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन, जैसे कि अभी उनको पता है कि राहुल सर की भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, राइट सर? यस, करेक्ट। तो सर आपने किसी को कांटेक्ट किया हुआ उसके लिए कि, या फिर आपने खुद डिजाइन करी होगी? जी। तो मतलब आपको अगर स्टूडेंट्स कभी ऐसा लगे कि हाँ यार ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, बट अगर मैं बनाता तो उसको मैं यहाँ पर ये इमेज नहीं लगाता, मैं यहाँ पे ये चीज लगा देता, यहाँ पे लिंक आ जाता, यहाँ पे फोटो आ जाती, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल हो रहा होता। तो अगर आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, और ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे, आपको अभी 12th के बाद ही आप ये सब चीजें समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको हाँ BTech करनी ही करनी है। अब के टाइम में डिग्री ये एक तरीके से बस आपको एक एनेबलमेंट देती है कि हाँ मार्केट में जाइए, आपको आप बोलेंगे कि हाँ नाउ आई एम अ बैचलर और मैंने ऐसे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, ये आपको इनेबल करते हैं। बट अगर आपके पास राइट स्किल्स है तो बेशक आपकी डिग्री कुछ और है, आप उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये हमने वेब एप्लीकेशन की बात कर ली। अभी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन चलाते हैं, तो वो भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वो आप इस पे कर सकते हैं कि हमारे पास मेजरली कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा, कोई स्टूडेंट, हम मोबाइल्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आजकल?
बहुत इजी है। आप एक भी एग्जांपल दे दीजिए। मोबाइल में इनको सिर्फ एप्लीकेशंस रन करनी आती हैं अपने काम की। एंड्रॉइड हाँ, राइट, वेरी गुड प्रियांशु। सो एंड्रॉइड एक एग्जांपल है, एंड्रॉइड की बहुत बड़ी मार्केट है। देन वी हैव iOS ऑल्सो, जो कि एप्पल ऑफर करता है। देन फिर बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि लिनक्स का भी आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लेकिन और यूज भी नहीं करते क्योंकि इतना फेमस नहीं है। लिनक्स का है, देन सैमसंग का भी आया करता था, बट अब मेजरली हमारा एंड्रॉइड और iOS ही चलता है, मार्केट में डिमांड नहीं मिलती है। हो सकता है 5 या 10 साल आगे ये भी चले जाए, कोई नया iOS, कोई नया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए। तो कंप्यूटर साइंस में ये तो है कि चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। 5 इयर्स के अंदर ही आप अगर देखेंगे, आप अपना 5 साल पुराना कोई फोन उठाना, आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी छोटी सी स्क्रीन है, ऊपर इतना गैप है, नीचे इतना गैप है, इतना मोटा है, या फिर ये है वो है, आपको लगेगा। ठीक है, देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड जो कि अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, वो है साइबर सिक्योरिटी। अगर आप इनसे बच्चों ने सुना होगा कि फेसबुक पे डेटा लीक हो गया, या किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, या फिर ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो गई हैं स्विगी या जोमेटो से गलती से, और अब उनको फाइन देना पड़ेगा उससे रिलेटेड। तो ये सारा डोमेन आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का। मतलब कि आपकी एप्लीकेशंस, आपका डेटाबेस, आपका नेटवर्क एप्लीकेशन, जैसे कि आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गया, नेटवर्क जैसे कि आप वाईफाई आप यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज मतलब, या फिर आप कुछ भी एप्लीकेशन कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे चला रहे हैं और जो आप उसमें बातें कर रहे हैं वो कोई और देख सकता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है। और फिर बात आ गई जैसे कि डेटाबेस, अगर आपको व्हाट्सएप का या फिर किसी का भी डेटा कहीं पे सेव हो रखा है, तो वो डेटा कोई और तो नहीं एक्सेस कर पा रहा, अनऑथराइज्ड पर्सन। आप वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा डेटा कोई और देखे, मेरी फोटोज या मेरे मैसेजेस या मेरा कोई ओटीपी आता है बैंक का तो कोई और देखे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये सारा आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी के उसमें। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हर एक बड़ी कंपनी, जैसे एग्जांपल दूंगा Amazon, फेसबुक, गूगल, इनका एक बाउंटी हंटर प्रोग्राम होता है। बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, आप इनकी वेबसाइट पे आप ढूंढिए कि अरे यार इनकी वेबसाइट पे एक वल्नरेबिलिटी है, मतलब एक वीक पॉइंट है कोई, कि ये वीक पॉइंट है और अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो हम इनका कुछ डेटा निकाल सकते हैं या कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। और आप उनको जाके बता दीजिए कि हमने हमारी साइड से टेस्टिंग करी और हमें ये गड़बड़ मिल गई है। बहुत मुश्किल होता है, उन लोगों को कई महीने लग जाते हैं ढूंढने में, और अगर आपको मिल जाता है वो आपको मतलब $10,000, $30,000, $15,000, मतलब जैसे जैसे कंपनी जितना बड़ा आपने बग ढूंढा उसकी सिवियरिटी के बेसिस पे उतने अकॉर्डिंगली आपको पे कर देंगे कि आपने हमारे को ये इतनी हेल्प करी एंड वी वांट टू गिव यू, और आप उसको फिर पोस्ट करिए। लोग इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। देन एक फील्ड है जो कि पूरी कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस के अंडर नहीं आती, वो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी ब्रांच है जो कि हो गई आर्डिनो रोबोटिक्स की। मतलब उसमें आप कोडिंग कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे करेंगे, लेकिन आप चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद आर्डिनो पे काम किया था, हमने कुछ छोटे मोटे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या फिर अगर सारी लाइट्स बंद हो गई तो अपने आप नाइट लाइट ऑन हो जाए। ऐसे छोटे छोटे बेसिक। एक था कि हैंड्स फ्री सैनिटाइजर बनाया था, जो अब मतलब रेडीमेड बनने लगे हैं, जो आप देखते होगे कि हर मॉल के बाहर होता है कि आप हाथ आगे करते हो वो अपने आप सैनिटाइजर डिस्पेंस कर देता है। तो हमने वो बना के देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। देन आपने ब्लॉकचेन सुना होगा। ब्लॉकचेन हो गया, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत बेसिक समझाऊंगा, अदरवाइज ब्लॉकचेन तो बहुत ही एक बड़ा फील्ड और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ब्लॉकचेन मतलब कि हमारे पास डेटा ब्लॉक्स होते हैं और इसमें कभी डिलीशन नहीं होता, हमेशा एक चेन बनती जाती है। एक डेटा ब्लॉक था, मतलब कि मैंने स्टार्ट किया, जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया और फिर उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा कि जो भी मैंने किया कि ठीक है 100 से मेरे पे और जुड़ गए और फिर और जुड़ गए या फिर हटे गए। बट ये नहीं होता कि 100 वाला ब्लॉक डिलीट हो जाए और सीधा वहां पे मैं लिख दूं कि 110 रुपये। ये नहीं होता ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपने ब्लॉकचेन को बिटकॉइन के साथ सुना होगा। मेजरली बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज जो होता है आजकल बहुत ज्यादा इसका क्या बोलते हैं
ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि क्रिप्टो करेंसी ले लो, बहुत ज्यादा दे बूम एंड दे फॉल डाउन इक्वली, ठीक है। तो ये सब हैं जो ब्रॉड कंप्यूटर साइंस के डोमेन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस में मुझे इंटरेस्ट आता है, आपने कई सारे लोगों ने क्लास 11-12 में हो भी सकता है कि आपके पास जो हमारा 4th और 5th सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल मतलब जो होते हैं बेसिकली, उसके अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस रही हो और आपको इंटरेस्ट आया हो कि आई थिंक आपके पास पाइथन हो, C++, जो भी आपने लैंग्वेज में पढ़ा हो, तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है कंसिडरिंग दी ग्रोथ। आपकी करियर ग्रोथ जो होती है इसके अंदर वो अच्छी होती है। दी आपके सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर सुनोगे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। और एक जॉब सिक्योरिटी इस सेंस में कि अगर आप देखें पैंडेमिक के अंदर, और जो कि डायरेक्ट जिसमें था रिक्वायर्ड था कनेक्शन लोगों का, वो उसमें जॉब्स बहुत ज्यादा गई है। बट कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड थी जब हम घर बैठे काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग, और सब मतलब कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। तो उस सेंस में मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। फाइनल चॉइस आप अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे लेंगे। और ये मेरी साइड, दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन्स फ्रॉम माय साइड। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और इफ anything Mr. Rahul or Mr. Nimish would like to add, you can please do. Thank you so much, Mr. Anurag. Thank you. And now start the question answer session. सर Yes, Yes, please. सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आसिफ। मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि अगर हमारा इंटरेस्ट, अभी मैं एक्चुअली 12th क्लास में एंटर करा हूँ इस साल, तो मैं पूछना चाहता हूँ अगर हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है, मतलब पाइथन, तो हम डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं जो हम अपना स्किल जो है ये लूज ना करे, स्ट्रॉन्ग कर सके। तो मैं ये पूछना चाहूँगा प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन हासिल। तो देखो, आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ 11th और 12th में हो, और अगर आपने इससे पहले मतलब बचपन से कोई बहुत मेजर कोडिंग नहीं करी, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, और अगर किसी और को भी सेम क्वेश्चन है तो उसको भी दूंगा। आप लोग अभी आपके 12th और 11th में कुछ वो होते हैं टॉपिक्स लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग टेक्निक्स आपकी होगी, राइट? यस सर। है ना? तो ये सब ना हमारे सर्चिंग टेक्निक्स, हाँ, something about basic Python and programming और तो देखो यार, अभी ना आपको फोकस करना है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे। आपको पाइथन अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी इज कि कंप्यूटर साइंस में अभी आने वाले 5 साल के बाद पाइथन रहेगी या फिर कोई और लैंग्वेज आ जाएगी, नहीं, तो उसका कुछ नहीं गारंटी। बट एक चीज जो रहेगी वो है आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हो और उसमें आपको सॉर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो देखो सिंटैक्स बदल जाएगा, आपका लॉजिक सेम रहेगा, राइट आसन। तो पाइथन, हमें सिर्फ पाइथन पे नहीं टिकना, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है इसे इम्प्रूव करनी है। तो आप ये करोगे कैसे? आप ना ऑनलाइन जाना, आप वेबसाइट्स देखो। पहले तो आप अपना जो स्कूल का बेसिक सिलेबस है आप देख लो कि आप उससे अच्छे से मतलब आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें वही करना है, अगर बेसिक्स नहीं होंगे तो आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। पहले फाउंडेशन बनाइए, उसके बाद आप ट्राई करिए, सिर्फ ट्राई करो कि बेसिक आप एल्गोरिथम्स समझ सको। क्योंकि अभी मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल उसमें डीप घुस जाइए, ऑनलाइन जाओ, कोर्सेफ एक प्लेटफॉर्म है, और हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मीडियम या फिर हार्ड में जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट 11th-12th में एक्सपेक्टेड है वो। अगर आपको पूरा प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस ना हो, आप बिल्कुल इजी से स्टार्ट करिए, और बहुत छोटे छोटे आराम से कोई भी बेसिक क्वेश्चन उठाइए और उनको सॉल्व करना शुरू करिए खुद। और अगर मतलब होता है कि आपने ट्राई किया और नहीं हो पा रहा, फिर आप उसका आंसर देखिए जिन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, समझो उसे, फिर से उसको खुद कोड करो। तो इससे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी मेरे हिसाब से।
और मैं तो कहूँगा कि जब आप अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर इसमें जाते हैं तो जब तक आप जाएंगे आप और बच्चों से सच में काफ़ी आगे जा चुके हैं अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जिसके साथ ये भी सजेस्ट करूँगा, सिंस आपकी क्लास 12th है तो जो ये चीज़ है ना कंप्यूटर साइंस, ये टाइम डिमांडिंग है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है, बट आप और सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करेंगे। थैंक यू सर, वेलकम। वेरी Sir? काइंड सजेशन फ्रॉम यू। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैं आई थिंक मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे कौन सी ऐप है तो चूज करूँ, पाइथन या जावा? अमन, आपकी ना पूरी बात मुझे मतलब आवाज नहीं आई, जैसे एक बार आप रिपीट करेंगे? सर मैं ऐप बनना चाहता हूँ, ऐप जो मैं चाहता हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करूँ बनाने के लिए जो मेरे को बेस्ट इजी वे पड़े और समझ जाए अच्छे से, पाइथन या जावा, व्हिच इज द बेस्ट? देखो, बेस्ट नहीं होता है कुछ भी, बेस्ट नहीं होता, आपकी प्रायोरिटी पर होगा। और आपके लिए जो बेस्ट है वो मेरे लिए बेस्ट नहीं हो सकता, जो मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। इसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलूँगा कि पहले आप अपना जो एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं उसका आप उसकी डिटेल्स में जाइए। क्या वो वेब एप्लीकेशन होने वाली है, मतलब कि आप कहीं पे वेबसाइट पे बनाना चाहते हैं, क्या वो एक मोबाइल एप्लीकेशन होने वाली है जो आप मोबाइल पे चलेंगे, क्या वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होने वाली है, क्योंकि इन तीनों के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या है, मतलब जो बनाना चाह रहे हो। फिर आप ऑनलाइन सर्च करो कि मुझे किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो उसके लिए बेस्ट, मतलब जिसमें ये बेस्ट इंप्लीमेंट हो सकती है, राइट? अगर वेबसाइट है तो आप देखोगे कि एंगुलर और नोड और इन सब में ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लेवल पे मैं सजेस्ट करूँगा आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सबसे बनाओ अगर वेब एप्लीकेशन है। और मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप एंड्रॉइड पे स्टिक कर सकते हो, और iOS के लिए स्विफ्ट होता है, राइट? देन अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और आप GUI और इन सब के बेसिस पे बनाना चाहोगे तो आप जावा, पाइथन दोनों का कंसीडर कर सकते हो, जैसा आपको जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। Next question, please. सर अगर मेरे को ग्राफिक डिजाइन की, मतलब मेरे को अगर अपनी वेबसाइट पे अगर उसे डेकोरेट करना है एक अच्छे वे में, प्रोफेशनल तरीके से, तो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी प्रेफर करना चाहिए आपको? देखो, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो मेन आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। क्या वो आपको आती है? अगर हाँ आती है तो आप इसमें आगे बढ़ोगे फ्रेमवर्क्स के साथ। तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं हमारे, अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ, जब आप घर बनता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, पिलर्स खड़े हो जाते हैं, देन एक वो बन जाता है जो सीलिंग का वो होता है, लेंटर कहते हैं उसको हिंदी में आई थिंक, ठीक है, वो हो जाता है। फिर पिलर्स होते हैं, बीम्स होते हैं। तो इस फ्रेमवर्क को बिना आप यही समझ लीजिए, हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं कि एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर बना रहता है, फिर उसके बाद आप इस पे, हाँ जी, डेटा फ्रेम वगैरह, एम आई राइट? नहीं, डेटा फ्रेम आप आई थिंक डेटा हैंडलिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं डेटा फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्रेमवर्क, डेटा फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो। मैं आपको, अगर आपको बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छी बनानी है और आपके पास टाइम है सीखने का और आप इसमें एफर्ट्स डिवोट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एंगुलर, Node.js इन सब पे ट्राई करिए, आपकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिसको आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो कि लोग कैसे डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है कि सिस्टम डिजाइन भी कैसे होता है, कि लॉगिन का बटन किस साइड आना चाहिए बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस के लिए, UX UI भी इसके अंदर आ जाता है। आप नॉर्मल एप्लीकेशन, नॉर्मल वेबसाइट कोई भी ऐसे नहीं बना दोगे। आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि यूजर्स को पसंद आए, लोगों को यूज करने में आसानी हो, कि आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। और वो फिर अगर आप इतना सब माइंड में रखोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक नीट एंड क्लीन लुकिंग वेबसाइट बनेगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Anyone question? Next question. यस सर। सर जॉब के पर्सपेक्टिव से विच वन इज बेटर, पाइथन और जावा? दोनों बहुत अच्छे हैं।
मैं आपको रीजन देता हूँ। देखो पाइथन आपने सुना होगा कि आजकल बहुत ज्यादा बूमिंग है, जो कि रियलिटी है। पाइथन हर बड़ी कंपनी यूज कर रही है, बट Yes. अगर आप कंसीडर करोगे जो एसडी रूल्स होते हैं, एसडी रूल्स बोले तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आपने सुने होंगे, तो बहुत जो बेस्ट जॉब्स होती हैं, जो कि हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, वहाँ पे ना बहुत मतलब ये आप ये देखोगे तो ये रियलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे पाइथन डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं पूछेंगे। वहाँ पे एक तो आपको ये चेक करेंगे कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे हैं और कोडिंग स्किल्स कैसे हैं, और इसके साथ साथ जो मेन वहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज होती है यूजुअली इट इज C++ जावा। वहाँ पे पाइथन नहीं होती, हो भी सकती है बट कंफर्म जावा C++ होती है मेजरली, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना होगा। जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से दोनों बहुत अच्छे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक डाउट है सर, अगर मैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ BSc, तो सर उसके बाद कौन सा जॉब प्रेफर करूँ जिससे ज़्यादा फायदा हो सर, एफिशिएंसी मिले? शेखर देखो, ये तो ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी जॉब मिल रही है, जो आप प्रेफर करेंगे। प्रेफर तो देखो वही करो जो जिस भी आपको रोल में जाना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है लेट्स से, तो आप प्रेफर करना कि आपको इसी रिलेटेड कोई जॉब मिले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसके बाद मुझे मतलब आपने पढ़ा, आपको लगा कि नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, मुझे डेटाबेस और डेटा हैंडल करने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना आपको मतलब इन सब चीजों में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट एक एग्जैक्ट आंसर देना ये आप पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की प्रायोरिटीज और खुद के इंटरेस्ट क्या है। पहले आपको वो जानने होंगे, पहले आप पढ़िए, फिर आपको देखिए कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, फिर आप उस तरफ जाइए। Sir, हाँ जी। I have a doubt now. You said that Python is not used in the companies and all. And should I continue with it, or I have a doubt? Should I continue नहीं, with it? मैंने ये नहीं बोला कि कंपनीज डोंट यूज इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल मेजर कंपनीज यूज पाइथन, बी इट गूगल, फेसबुक। आई थिंक फेसबुक का तो बहुत मेजर चंक पाइथन पे डिप्लॉयड है। अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप डाउट माइंड से निकाल दो कि पाइथन यूज नहीं होती। पाइथन बहुत ज्यादा यूज होती है, पाइथन हर जगह यूज होती है एक्चुअली। अगर आप पाइथन देखोगे, पाइथन आपका डेटा साइंस में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, GUI में है, इवन डेटा हैंडलिंग के अंदर है, और इवन बहुत मतलब कोई पाइथन का एक्चुअली लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपको हर जगह दिख जाएगी। ओपन सोर्स है और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ी नीट एंड क्लीन होती है। तो वो आप डाउट माइंड से निकाल दो कि कंपनी यूज नहीं करती। जो मैंने बोला था वो ये था कि जब आप C++ जावा में कोड करोगे ना, तो पाइथन कुछ हद तक ना आपकी कुछ चीजें जो है वो इजी कर देती है, ठीक है। तो कंपनीज एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आपको एक्चुअली लॉजिक पता है। अगर आप पाइथन में डायरेक्ट लिख दोगे कि डॉट सॉर्ट फंक्शन आपने लगा दिया, वो डायरेक्ट सॉर्ट कर देंगे, बट आपको एक्चुअली सॉर्टिंग टेक्निक आती है कोई? आपको मर्ज सॉर्ट आता है, आपको बबल सॉर्ट आता है, आपको इंसर्शन सॉर्ट आता है, आपको सिलेक्शन सॉर्ट आता है, बकेट सॉर्ट, इतने सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, क्विक सॉर्ट, ठीक है, एनालिटिक सॉर्ट, तो इतने सारी आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स आती भी हैं। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि आप C++, जावा इसके अंदर आपको कोडिंग आए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पाइथन आती है तो कोई बुरी बात है, उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। बट इन जनरल जो उनके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग या कोडिंग्स कॉम्पिटिशन होंगे वो C++ जावा में ज्यादा होते हैं। मैं ये बोलता हूँ। Okay, sir. Thank you. वेलकम। सर हैकिंग में क्या स्कोप है, मतलब जब ये अंदर लीगली है या देखो हैकिंग तो ग्लोबली इलीगल है, ठीक है। तो हैकिंग का स्कोप देखो, आपको जानना होगा कि ना हैकर्स दो टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। तो व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? जो एथिकल हैकर्स होते हैं। बेसिकली कंपनीज आपको हायर करेंगी, आप अपनी ही कंपनी के वीक पॉइंट्स के लिए ढूंढोगे विद देयर ड्यू परमिशन। जो हमारा मतलब उसमें मेन गोल रहेगा कि हम अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर या नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन मोर सिक्योर बनाए। तो आप खुद ही अटैक करोगे, खुद ही जानोगे कि अच्छा हमारा ये वीक पॉइंट है, फिर आप उसे फिक्स करवाओगे या करोगे, वो डिपेंड करेगा आपके रोल पर।
ठीक है। स्कोप की जो बात कही आपने, एथिकल हैकिंग, और जो दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, मतलब बेसिकली दे हैक इनटू द सिस्टम्स और नेटवर्क्स जस्ट फॉर देयर प्योर बेनिफिट, मतलब लोगों का पैसा चुराना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना, ये सब वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो अगर उस सब में पढ़ोगे तो पकड़े जाओगे। और इनिशियली अगर आप कुछ भी मतलब सीखते हैं, जब हम स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेंगे कि ये डाउनलोड कर लो, इसको चलाना, डायरेक्ट व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, ये हैक हो जाएगा। इन एप्लीकेशंस को कभी डाउनलोड मत करना, क्योंकि ये एप्लीकेशंस को ब्लैक हैट हैकर्स बनाते हैं कि जो बच्चे नए होते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, सोचते हैं हैक करेंगे, पता चलता है उस एप्लीकेशन से उनके सिस्टम में वायरस आ जाता है। ठीक है, बहुत फनी चीजें होती हैं बच्चों के साथ। आप इन सब चीजों में आप सही डायरेक्शन में जाओ, एथिकल हैकिंग में जाना है, बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत अच्छा स्कोप क्यों है? आप देखो हर एक चीज क्लाउड पे जा रही है, हर एक चीज वर्चुअल होती जा रही है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। आपकी क्लासेस पहले ऑनलाइन नहीं होती होंगी, आई थिंक अब शायद, अब पता नहीं फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई है कि नहीं, बट अब सब कुछ ऑनलाइन जाता जा रहा है। ठीक है, क्लाउड पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मूव हो चुका है, क्लाउड इतना ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है कि क्लाउड की भी सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर जॉब्स भी ऑब्वियसली बनेगी। तो स्कोप तो डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट डोमेन्स टू गेट इनटू। सर, जब इंडिया में हैकिंग इनलीगली है तो इस टाइम पे इजराइल कंपनी पेगासस वायरस हर पॉलिटिशियन के फोन पे ट्रेस करा दिया है, तो सर इसके ऊपर हम एक्शन क्यों नहीं कर सकते जब वो इनलीगल है इंडिया के अंदर? यार ये सब तो इसमें देखो पॉलिटिकल और वो सब चीजें आ गई, क्यों नहीं कर सकते? ट्रबल में मत पड़ना, आंसर देके कोई भी ये हमारे बच्चे हैं, ये अच्छे अच्छे सवाल पूछ लेंगे, इजराइल अटैक क्यों नहीं कर रहा और वो अटैक क्यों नहीं कर रहा। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो ये तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है तो उनके ऊपर है कि क्या अटैक करना है, क्या नहीं करना। देखो इस चीज में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखो सारी चीजें ना एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। एक चीज हम कहते हैं कि क्लियरिंग द लॉग्स, मतलब कि जब हम सिस्टम में घुसते हैं या फिर किसी और भी सिस्टम में, कोई मतलब हम नहीं, मतलब हैकर्स लेट्स से कोई जाते हैं, तो वो जब वापस जब बंद कर रहे होते हैं ना एक्सेस, तब वो ट्राई करते हैं कि लॉग्स जो क्रिएट हो, जैसे कि नेटवर्क लॉग्स, आपकी आईपी से वहाँ पे कनेक्शन गया, आईपी मतलब आपका जो इंटरनेट कनेक्शन था वहां से आपके पास कनेक्शन अगर जुड़ा है तो उसके भी लॉग्स क्रिएट होते जाते हैं, तो फिर वो भी डिलीट करेंगे। ट्राई करते हैं कि जो उन्होंने जो भी एक्शंस करे हैं वो दिखे ना, वो पकड़े ना जाए। ठीक है, तो मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी एक्शन हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है वो तो देखो मुझे नहीं पता। Next question, please. Is there any doubt regarding computer science or technology, or anyone who wants to ask any type of question? They are open to ask. They can unmute yourself. Class 12 students or 11 students, or anyone else who want to get some broader knowledge in this domain, they can ask. Okay, so I think most of the students got their answer. So thank you, Anurag, for coming. Okay, yeah, Gulshan, yes. Yes, please, Gulshan, go ahead. Sir, my question is not on computer science, but my question is based on electrical engineering. So can you tell me a brief overview over this field? Gulshan, I can give you brief understanding about what I know of it, but जो exactly उसमें होता है वो तो कोई आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बंदा ही बता पाएगा। बट अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो आपने रजिस्टर, कैपेसिटर की, इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिकली सारा करंट, जो आपकी वोल्टेज होती है, पावर होता है। यस सर। काफी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, मोटर और या फिर हमारे जो कंप्रेसर्स हो गए, इन सब की नॉलेज आएगी आपको। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप या तो किसी राइट पर्सन को कांटेक्ट करिए, या फिर आप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनफॉर्म डिसीजंस लेने के लिए आप जो भी जिसमें भी जा रहे हैं, आप ऑनलाइन जाइए, आप यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करिए, आप कोर्स का नाम टाइप करिए, आप देखिए वहाँ पे सिलेबस में है क्या। आपको, अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, हमने कंप्यूटर साइंस
इंजीनियरिंग करी है और राहुल सर मेरे साथ ही थे, हम सेम बैच के हैं। तो वैसे हमारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, बट हमने फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्डिंग भी करी है, हमने उसके अंदर कारपेंटरी भी करी है। तो बच्चों को नहीं पता होता कि ये सब भी पार्ट होने वाला है। तो आप पढ़िए ऑनलाइन कि क्या सिलेबस के अंदर क्या क्या आ रहा है, फिर आप ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। उसमें कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और आपका ये किरचॉफ लॉ का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होता है वो फर्स्ट ईयर में हमने देखा था उसमें। ये 12th के बाद, 12th तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, जो हमने बीटेक फर्स्ट ईयर में जो किया था शायद वो चीज ज्यादा डिफिकल्ट थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हाँ जी, यस प्लीज सर। जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा था हमारा टॉपिक जी, यस पुनीत सर। एज वी नो दैट कि सर जो मेजर पोर्शन है प्रेजेंट टाइम में वो मूव ऑन कर रहा है ऑनलाइन की तरफ ड्यू टू पैंडेमिक। तो सर काफी ये चीज देखी गई है कि बच्चे अब मतलब ऑनलाइन फ्रॉड्स भी करते हैं। मतलब ये नहीं कोई एक मेजर एज नहीं है, बट यस बच्चे फ्रॉड कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी नो दैट कि सर एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो स्पाई कर रही है एक पर्सन के ऊपर? देखो आई थिंक आप थोड़े से मतलब आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आ रहा है, कहना चाह रहे हो कि कोई वेबसाइट या इन जनरल कोई एप्लीकेशन आपकी स्पाई कर रही है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट स्पाई करने की बात कर रहे हो ना, तो वेबसाइट कैसे स्पाई करेगी? यूजुअली कुकीज होता है, आपने नाम सुना होगा कुकीज, या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक अटैक होता है, XSS जो कि होता है। तो इसके थ्रू होता है। कैसे होगा आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हो कि माउस अपने आप मूव कर रहा है, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा भी हो जाता है कि आप देखते हो कि स्क्रीनशॉट सेव हो रहे हैं आपके फोल्डर किसी में, या फिर कोई आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, फिर कोई फाइल्स एक्स्ट्रा आ गई हैं जो कि आपको पता ही नहीं है, कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ है बट वो फाइल्स आ गई है, कुछ हिडन फोल्डर्स बन गए अपने आप। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है। आपको पता लगाना है तो आप एंटीवायरसेस अपने अपडेटेड रखिए, वो बता सकते हैं कि यहाँ कोई सिस्टम में वायरस आ गए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मतलब इसकी नौबत ही ना आए तो मतलब एंटीवायरसेस रखिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ट्राई करिए कि ना ही डालें। अगर मैं मोबाइल के एग्जांपल बात करूँ तो मोबाइल के अंदर आप जो प्ले स्टोर से डाल रहे हो वो बेस्ट है। जो आपने सुना होगा कि ये एप्लीकेशन डाल दो सारे प्राइम, सारा ये नेटफ्लिक्स सब आ जाएगा, वो सब चल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके अंदर वायरस भी होगा साथ में जो चलेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो आप डालते हो ना कि सेटिंग्स में जाके एनेबल करते हो कि इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए, वो हमें लाइक बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो एक फ्री चीज़ के चक्कर में आप अपने मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी एक गंदा सॉफ्टवेयर डाल रहे हो जिसके चक्कर में आपके फ़ोन के सारे लॉग्स, आपके मोबाइल पे OTPs, आपका सारा मेल, फोटो, साउंड, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स सब आपका वो अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। Anyone else who want to ask anything related to computer science domain? I think most of the students have cleared their questions and answers. So thank you so much, Mr. Anurag. So for having this time, for taking out this time for us. Basically, after getting the results of class 12, students are very curious to know about what to choose or what to get into for their best career options. Like, I got some of the major questions like, sir, which got higher package, what I choose, what can I do. मतलब बच्चों को ऊपर से बेसिक चीजें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, but what is reality behind the AI, what is going on, the internal concept they don't know. So that is why we hold this webinar. So I think it would be the best one, and student will get some knowledge from this platform only. So once again, thank you so much.
And thank you so much, students, also for taking out your time and having some great question and answer session. So thank you. Thank you, sir, to take care. Thank you, Welcome, sir. sir. Welcome, students. Thank you so much, Mr. Anurag and Mr. Rao sir, for conducting this opportunity, for sharing our student. Okay. So all dear students will get the feedback form. They will get a feedback form after this webinar. They can fill it and they can give some fabulous and fantabulous feedbacks according to their knowledge what they get from here only. So thank you so much. Thank you, Anurag, for your time. So we will get it together very soon. I will catch you. So thank you so much. Thank you for joining us. Thank you, Rahul. Thanks all of you Okay. Okay. for joining us. And we will meet on next webinar, next Sunday. Okay. Thank you, Nimish. You can end the meeting. Possible.